हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका कंप्यूटर टीचर वीरेंद्र एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ मैं आपको आज दो चीज़ें पढ़ाऊँगा। मैं एक बाइनरी डिवीज़न और दूसरा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। द रीज़न बिहाइंड इट, in last video you have completed your computer arithmetic, that is addition and subtraction, and apart from this you have learned the conversions. Conversion means the conversion which was happen from one number system to another, like decimal to binary, binary to decimal. Or apart from this you have already learned octal number system and hexadecimal number system also. So without wasting any time, we are just starting the remaining portion, that is binary multiplication and binary subtraction. स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे पायनियर लर्निंग एकेडमी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, ताकि आपको अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। सो इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वे विल टेक टू नंबर्स, लेट इज 1 0 1 multiplied by 1 and 1. So the rules for binary multiplication is as follows: 0 into 0, that is 0, 0 into 1, that is 0, 1 into 0, that is again 0, 1 into 1 equal to 1. Now by using these rules we are just trying to solve the binary multiplication, trying to solve this question also. So how we are going to perform this, just look into this. We have already taken the two numbers. First, when we multiply 1 and this one, then you will get 1. 1 में अगर 0 की मल्टीप्लाई करें फिर 0 आपको मिला, 1 में फिर 1 की करें तो आपको 1 आया, यानी कि एज इट इज़ हमने ये नंबर हमने उतार दिया। ये 1 में फिर वही सेम रिपीट करना पड़ेगा आपको। 1 में इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से वही मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान का रखना है, लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको देखना होगा आपको। रीज़न इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, and for doing this you are also adding the numbers, but the method for writing the numbers is little bit different. Okay, so first you will write this like this. Now leave one space here and then you will write, and you have to go right to left, and after having this just add it. कैसे करेंगे, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, so it means you have to put down 1. 0 plus 1, that is 1, again 1 plus 0 1 and 1, ऐसे आपने उतार दिया। तो अब now this question is very very simple for you and I think you are able to understand. And in this binary multiplication you are using two kind of rule. First one is rules for multiplication, binary multiplication, and second one rules for addition. So let me recall the rules for addition also. 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1, 1 plus 1 equal to 10. 0 is the unit place, 1 is for carryover. Now we are going to take one more example here for binary multiplication, and this example is little bit tough, little bit, not impossible but little bit tough, but right now I'm here to solve your problem. So just look into this and try to understand. So the question is 1 1 1 1 4 times 1 multiplied by 101. Then how are doing this? First 1 में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, तो आपने ऐसे ही उतार दिया आपने। देन लीव वन स्पेस एंड देन राइट इमीडिएटली यू हैव टू राइट 0. कैसे, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करें 0 ही मिलेगा, 0 में इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, सब जगह 0 आपको लिखना होगा इस तरीके से। देन आफ्टर नाउ यू हैव टू लीव 2 स्पेस. सो
leave one space here and then leave space one space here. Now again if you multiply 1 for all the numbers, then 1 into 1 1, 1 into 1 1. So like this you have written all these numbers. Now it's time to add the number. It's time to add the number. So how we are going to add this? इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो एज इट इज हमने उतार दिया. 1 + 0 ये आपका 1 हो गया. इसके बाद 1 और 0 पहले इसको आप जोड़ लीजिए. 1 + 0 आपका 1 आएगा ये, और 0 में फिर 1 जोड़िए तो आपका फिर से आपका 1 आया. सो आपसे मैं कह रहा था कि आप यहाँ पर एडिशन किस तरीके से करेंगे. एडिशन करने के लिए आपने देखा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, 1 उतार दिया आपने. यहाँ पर आपने फिर क्या किया, आपने 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया. यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, फिर से 1 आ जाएगा, और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो फिर से आपका 1 आया. लेकिन आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आप बारी बारी करके नहीं जोड़ना है, आपको एक साथ आपको जोड़ना है. यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है. यहाँ पर आया कहाँ से, ये फाइंड आउट करते हैं इसको. देखिए यहाँ पर ऐसे मत जोड़िए आप, 1 + 0 ऐसे मत जोड़िए आप क्या करिए, यहाँ पर 1 + 1 सीधे जोड़िए आप. जो जो आपको 1 दिखता जा रहा है आप उसको 1 जोड़ते जाइए आप. तो 1 + 1 0, 0 आपने यहाँ लिखा, और एक आपका हो गया कैरी. कैरी आपने यहाँ लिख दिया आपने. तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आपने मैंने ब्लैक पेन से यूज़ किया हुआ है यहाँ पर. अब यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, फिर से वही कंडीशन. तो आपका 0 आया, 0 के बाद 1 आपने कैरी यहाँ लिख दिया. अब उसके बाद उस 0 में आपने जो आपका कैरी था वो भी आपने जोड़ दिया, फिर आपका 1 आ गया यहाँ पर. अब इसकी बारी है, यहाँ पे कैरी 1 है आपका, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर से जोड़ेंगे. फिर आपका वही 1 + 1 0, फिर 1 कैरी हो गया, फिर यहाँ भी आपका 1 कैरी है, यहाँ पर यहाँ 1 है. आप इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 1 + 1 10. सो आंसर हमारा क्या है, 1 0 0 1 0 1 1. तो ये आपका था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. उम्मीद है आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं. मैं इमीडिएटली या जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं. So that's now for binary multiplication. Now we are moving forward for the next topic. The topic is binary division. Binary division. So how we are going to perform this? So first of all, you just remember you are doing the division of decimal number, and that division is, you remember how to do that thing also. So you have to follow the same method for binary division also. How we are going to do that? Let me see. I'm just take one easy example for you, and then we will take a tough example. So listen, see here. सबसे पहले क्या किया आपने, एक आपने नंबर लिया 110 ले लिया आपने. इसको पता ही है पहले से, डिविडेंड बोलते हैं इसको. ये आपका 10 डिवाइज़र है आपका, और हमें इन आपस में इन दोनों को डिवाइड करना है. सो फॉर मेकिंग अ डिवीज़न, हाउ आर गोइंग टू परफॉर्म दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा ये 2 अंकों का है, ये भी है, तो आपको यहाँ से 2 अंक आपने ले लिए, डिवाइड किया, तो ये इससे बड़ा है तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा. ये आपने यहाँ चेक किया कि यहाँ पे 1 0 को और 1 यहाँ पर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया आपने. सो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि 10 1 ज़ा 10, तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया, या 11 एक तरह से मान के चलिए. आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1 में से 0 गया, तो आपको यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर हो गया 0. और ये वाला मैंने एरो से यहाँ लगा दिया कि आपको उतार दिया आपका, ये फिर से 10 आया, आपको 10 10 दोनों बराबर, यानी कि 1 टाइम्स एक बार और आपको लिखना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा -10, और उसका रिमाइंडर आ गया 0. तो क्वेश्चन आपका है ये है, और इसको लिखने का तरीका आपका ये है, 1 1 ब्रैकेट के बाहर 2. तो ये तो इस सिंपल सवाल था, और इस सवाल को देख करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हम जो बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं, 2 तरीके के रूल्स लग रहे हैं यहाँ पर. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपने देख लिया, बाइनरी एडिशन देख लिया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शंस के रूल आपको याद रखने होंगे यहाँ पर. विदाउट सब्ट्रैक्शन यू कांट डू एनीथिंग. सो आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको सब्ट्रैक्शंस का रूल एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको मैं. सब्ट्रैक्शन की जो रूल्स हैं वो मैं आपको एक बार रिकॉल हो जाएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी करने के लिए. यहाँ देखिए,
0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। और ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये ध्यान रहे, थर्ड पोजीशन पे हो आपका ये 1 माइनस 1 0। तो ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है डिवीज़न में। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हमने ध्यान दिया था, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स तो हम तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम सब्ट्रैक्शन एडिशन के रूल्स भी हम फॉलो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सो अब कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा टफ एग्जांपल, थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर कि किस तरीके से हमें बाइनरी डिवीजन को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ एक बड़ा नंबर लिया 1001 और ये आपका डिवाइज़र हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0 और 111, ये आपका डिविडेंड हो गया। अब डिवाइड करके देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या करिए आप, डिवीजन करने से पहले एक बार आप पहले शुरू में एक बार नंबर्स को पहले चेक कर लीजिए। फर्स्ट वी चेक द नंबर। तो हाउ आर डूइंग दिस, आप चेक करिए। यहाँ 4 अंकों का है, यहाँ भी 4 अंकों का, देखिए ज़रा 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस देखिए, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो यानी कि हमें एक और डिजिट हमें लेनी होगी। अब जब हमें एक और डिजिट लेनी होगी तो हमें ये टोटल जो डिजिट्स हो जाएंगे 5 डिजिट्स हो जाएंगे, यहाँ 4। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप 0 बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि आप एक नंबर आप यहाँ पे ले रहे हैं। आप 0 लेने के बाद अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करिए। अब कैसे, इसकी अगर हम एक नंबर आपने लिया, यहाँ 1 भी लिया आपने, और यहाँ पर 1 लेने के बाद यानी कि शुरू में आपने 0 लिया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक साथ आप 2 नंबरों को ले रहे हो, यहाँ पे 0 ले रहे हो आप, और आपने यहाँ लिया 1। तो अब मल्टीप्लाई के देखिए, आपको ये एज इट इज उतर जाएगा आपका। सो यू विल राइट हियर 1, आप देखिएगा राइट टू लेफ्ट जाइएगा, राइट टू लेफ्ट 1 0 0 1, और यहाँ पे कोई जगह नहीं, आप 0 लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। हम 0 माइनस 1, देखिए वही चीज़ आपका फिर से रिपीट हो गया, इट इज़ रिपीटेड वन मोर टाइम। इफ़ यू डोंट नो द रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन यू आर अनेबल टू परफॉर्म द बाइनरी डिवीजन ऑल्सो। सो फर्स्ट 0 माइनस 1, अगेन यू हैव टू टेक द कैरी। सो कैरी, दिस नंबर विल गेट द कैरी। सो ये इसको देगा, फिर इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, यहाँ पहुँच जाए। अब यहाँ पे हो गया 10। तो मैंने आपको बताया था कि आप 10 को पहले बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या दिखेगा 2। तो 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका यहाँ पे आपका शुरू में 10 हुआ था, लेकिन उसका बाइनरी 2 था, सॉरी आपका डेसिमल 2 था, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो 1 में यहाँ बचा, यहाँ बचा 0। 1 में से 0 हम करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये सब्ट्रैक्शन का पार्ट है ये, तो थोड़ा सा आपको टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर हूँ मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा मैं। फिर से देखिए एक बार और, 0 और 1, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया। कैसे आया यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले कैरी लीजिए, कैरी इसके पास आया, ये मिल करके हो गया 10 यानी कि डेसिमल 2 हो गया। डेसिमल को में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 में से 1 करेंगे तो यहाँ आ गया 1। यहाँ बचा हमारा 1 में से 0 किया तो 1। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए 1 में से 0 किया तो 1, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, तो 1 में से 0 गया 0, और ये चूँकि कैरी दे चुका है तो 0 हो गया, 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं। अब हमारे पास क्या नंबर है, 0 0 और 4 टाइम्स 1, और ये वाला जो 1 है आपने उतार दिया था, ये 4 टाइम 1 हो गया ये आपका। इसके बाद फिर से डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर से 1 आप लीजिए, 1 लेने के बाद आपका आएगा यहाँ 1 0 0 1। फिर सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, और ये वाला 1 आपने यहाँ उतार दिया। फिर से 1 आप ट्राई करिए, क्योंकि बड़ा नंबर है ये आपका आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पर, 1 में से 1 गया 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, और ये वाला 1 आपने यहाँ उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर एक जैसे हो गए हैं, और यहाँ पर हम एक बार और ले जाएंगे, और इस नंबर को उतार के जब सब्ट्रैक्ट करें रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि यहाँ पर आपको डिवीज़न तब तक करना है जब तक कि वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कभी कभी रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर आप एज इट इज़ रिमाइंडर को छोड़ सकते हैं आप, लेकिन आपको प्रयास बिल्कुल अंतिम तक करना है। सो ये था आपका बाइनरी डिवीज़न। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर करेंगे आप, सब्सक्राइब भी करेंगे आप, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे ये। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।